the day, Priyanjali. Everyone, I'm Priyanjali from All About Skin Wellbeing. I'm sure all of you must be keeping good health. We all know that taking good care of your skin is important for more than just your appearance. As the largest organ, your skin becomes the most essential part of your overall health. A fungal infection is very common on your skin or nails. Fungal infection or mycosis are diseases caused by fungus, yeast, or mold. Mild fungal infection can look like a rash, maybe itchy and annoying. So let's connect today with our expert, Dr. Nirali Modi, live from Godhra to enlighten us on the topic of fungal infection. Dr. Nirali Modi is a MD dermatologist. Her expertise lies in acne, laser, Botox, fillers, and cosmetics. She has been working around 10 years in this field and has successfully treated more than 15,000 patients. So, we have a doctor with us today because we know it's a monsoon season and more than 50% of the people are suffering from the issue which we are going to talk about today. So, let's connect with her and let's hear her next. We have Dr. Nirali Modi with us. We will be talking on fungal infection, its prevention and treatment. So let's proceed with the first question, Doctor. First of all, welcome to today's platform. And the So first much. question is what is fungal infection? How does it look like? And how does one knows in the initial stage that this is fungal infection and this is the time we should visit the dermatologist? Yes, correct. Thank you so much for this warm welcome. And see, this is a very important topic to be addressed, and I'm glad that we are here and onto this platform so that we can address maximum patients. So here is the most annoying problem about fungal infection, that it has red, itchy, and very bothering problem. So fungal infection में क्या रहता है कि जब हमारे skin का, see, these are the layers, this is a miniature of your skin, and we have five upper layer which is epidermis, and then we have two sturdy layer which is dermis. तो epidermis के ऊपर जब sweat, ऑयल एंड देन देर इज अ डर्ट, वो जब अक्यूमुलेट हो जाता है ना, तो द फंगस विच इज सराउंडिंग एरिया में जहाँ पे रहती है, वो फंगस एंटर कर जाती है अपनी एपिडर्मिस पे. सो फंगल इन्फेक्शन वो फूग से होता है, जो हमने बहुत कॉमनली देखा है. हम जब रोटी या ब्रेड को छोड़ देते हैं या दीवार पे जब सीलन लग जाती है, तो वी सी फंगस ग्रोइंग ओवर देयर. दैट इज द सेम फंगस विच इज ग्रोइंग ऑन आर बॉडी. वो अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है. एंड देन वो क्या करती है कि फंगस आजू बाजू में अपनी ही स्किन का न्यूट्रिशन लेके ग्रो करती जाती है, एंड देन इट लीव्स अ रेड एंड इची स्पॉट. यूजुअली व्हेन वी सी इट जब हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, कॉमनली सीन इन समर्स एंड मानसून्स. So right now this is a season for fungal infection, and we are seeing lot many patients suffering from this. Again, this is a contagious problem. ये itching या जो फंगस है, वो टच करने से या क्लोथिंग शेयर करने से स्प्रेड होता है. तो बेस्ट थिंग टू अवॉइड फंगस इज टू अवॉइड हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स. अपने जब भी समर है या मॉनसून है, तो यू कैन जस्ट कीप इट ड्राई. सो फंगल इन्फेक्शन is very common, and again, to address that, we are here, so we can go ahead with the other question. राइट, राइट, राइट। सो डॉक्टर, अक्सर शरीर के किन हिस्सों में देखा जाता है ये फंगल इन्फेक्शन का ग्रोथ? सी अगेन वी आर स्टार्टिंग विद द साइंस. हमें पता है कि जहाँ पे स्वेटिंग ज्यादा होगी, ऑयल कंजम्पशन ज्यादा रहेगा, और वहाँ पे जहाँ पे एयर सर्कुलेशन नहीं मिल रहा है, तो दीज आर योर हुँ, प्राइवेट एरियाज, एक्जिला या फिर थाइज. और बहुत लोगों को अभी जो ट्रेंड चल रहा है टाइट क्लोथिंग्स के, तो लेगिंग्स हुँ, पहन लिया, तो उसकी वजह से थाइज पे, बटक्स पे बहुत कॉमन है. उसके नाम भी उसी राइट, तरह से है. इफ यू फील, यहाँ पे हुँ, जॉकीज बोलते हैं, और जहाँ पे आप प्राइवेट एरिया में, वी एरिया के पास बहुत कॉमन है. देन वी सी अंडर राइट, आर्म्स में, अंडर आर्म्स की जो ओडर है, अंडर आर्म्स के अंदर जो पसीना निकलता है, उसकी वजह से फंगस को वहां पे ग्रोथ करने के लिए सब्सटेंस मिल जाते हैं, एंड देन दे ग्रो ओवर दैट. तो दीज आर द राइट, एरियाज. अदरवाइज इट कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ बॉडी. यूजुअली हेरी हुँ, एरिया जो है चेस्ट है. इवन वी सी फंगस इन स्कैल्प एज वेल, विच इज कॉल्ड टीनिया कैपिटिस. तो हुँ, फंगस कैन. राइट। Ladies and gentlemen, people who are watching us, we have doctor here with us. We are trying to get her connected because of some technical glitch. Uh, we are talking about a very important topic, and as doctor has already mentioned that this is the month which when we need to be
very much careful about the fungus around, स्पेशली जितने भी लोग हैं जो थोड़ा सा मॉनसून ज्यादा फेस करते हैं या वाटर लॉगिंग या वाटर फेस करते हैं, वो सारी एरियाज, वी आर लिविंग इन इंडिया नाउ। आज इस साल मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ इंडिया आर सफरिंग फ्रॉम वाटर। आप फ्लड्स देख रहे हैं हर एक जगह। तो बहुत कॉमन हो गया है फंगल इन्फेक्शन, स्पेशली इस सीजन में। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कि कैसे हम इस इशू से डील कर सकते हैं। प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज के बारे में भी आज आज हम बात करेंगे। सो प्लीज पीपल हु आर वॉचिंग अस, स्टे कनेक्टेड। आज बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हम करने वाले हैं। ऑल्सो बिकॉज स्किन के रिलेटेड है, सो वी विल ट्राई एंड टारगेट ऑल द एरियाज जो बाकी भी कारण से हमारे स्किन इश्यूज हो रहे हैं। बिकॉज वी हैव डॉक्टर हियर विद अस एंड वी आर ट्राइंग, राइट, शी इज राइट हियर। तो डॉक्टर हम बात कर रहे थे, तो हम डॉक्टर बात कर रहे थे कि आपने बोला कि टीनिया कैपिटल, जो सर में फंगल इन्फेक्शन हम देखते हैं, वो भी एक टाइप का फंगल इन्फेक्शन है। तो बॉडी के हर एक हिस्सों में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, ये तो हो गया। Okay, so everyone, we are still facing the technical glitch. Uh, important discussion है क्योंकि maybe it's taking some time, but yeah, हम सारी जो एजेंडाज है आज के हम टारगेट करने वाले हैं, और सारे हम सवाल जो है डॉक्टर से पूछने वाले हैं once she hear us and once we are well, everyone, we will request you all to please stay connected with us. We are talking on fungal infection today. आज हम ये भी जानेंगे, हम वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ फंगल इन्फेक्शन, या बॉडी के किन किन हिस्सों में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। ऑल्सो हम फंगल इन्फेक्शन के साथ ह्यूमन बॉडी के टाइप के बारे में बात करेंगे कि किस बॉडी में फंगल इन्फेक्शन इफेक्ट ज्यादा कर सकता है, और हमें बाकी सारी चीजें कौन सी चीजें ध्यान में रखने हैं इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फंगल इन्फेक्शन, इट्स प्रिवेंशन। वी आर स्टिल ट्राइंग टू Yeah. गेट डॉक्टर connected. Can you hear us, doctor? Can you hear me now? Yes, yes, I'm Perfect, here. perfect, perfect, perfect. Okay, we are extremely sorry everyone for the technical glitch. We are again in discussion with Dr. Nirali Modi. डॉक्टर, हम बात कर रहे थे कि बॉडी के किन किन हिस्सों में हो सकता है। तो आपने बेसिकली कहा कि बॉडी के हर एक हिस्सों में हम देख सकते हैं फंगल इन्फेक्शन। नाउ Yeah. लेट्स टॉक अबाउट पेशेंट्स जो ओबेसिटी से डील करते हैं, क्या Yeah. उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा टफ हो सकता है ये सिनेरियो? यस, सी एज द फंगस उनके दो ही मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक है वहां पे स्वेट का अक्यूमुलेट होना और दूसरा वेंटिलेशन ना होना। नाउ ओबेसिटी इज द बिगेस्ट फैक्टर जहाँ पे उनको एब्डोमेन के ऊपर फोल्ड्स हो जाते हैं, हैंड्स के आर्म्स के आसपास भी फोल्ड्स हो जाते हैं विद अगेन उनके जब ओबेसिटी इतनी ज्यादा है तो उनका एक्टिविटी या मोबिलिटी बहुत कम हो जाता है। नाउ दीज पीपल बिकम द बिगेस्ट टारगेट फॉर दिस फंगल इन्फेक्शन। So even I was talking about one of my patients these days कि weight loss या exercise कितना important है because that may prevent many of the upcoming problems. So you always take good care of your health and inside out because that is more important. एंड अगेन जो हम जहाँ पे बात छूट गई थी विच इज द साइड्स, इसका अकॉर्डिंगली हम फंगस को क्या नाम देते हैं। तो द फर्स्ट ऑफ हम्म। ऑल इज tinea capitis, the tinea या fungal infection. Now, see, tinea is a Latin word. मतलब होता है मौत या कोई जंतु जो हम बोलते हैं गुजराती में या हिंदी में। तो वो जब ऐसे जाके अपने फंगस या अपने स्किन के अंदरूनी लेयर्स के अंदर चला जाता है, इसीलिए उसका नाम हो गया था टीनिया। अब उसके जो जो अकॉर्डिंग टू द साइट्स उसका नाम होता जाता है। तो टीनिया कैपिटस इज जहाँ पे स्कैल्प पे हो जाता है फंगस। अगेन टीनिया हेयर के शाफ्ट के अंदर भी हो सकता है। दूसरा है टीनिया फेशी। yesterday only I had 3 to 4 patients of tinea facie, मतलब फेस के ऊपर दाद हो जाना, सच अ embarrassing thing as well कि पेशेंट को सोशली भी इतना प्रॉब्लम फेस करने का हो रहा है। देन वी हैव इज अ टीनिया कॉर्पोरिस, होल बॉडी पे जहाँ पे हो रहा है। देन अगर इफ इट इज ऑन योर बियर्ड इट इज कॉल्ड टीनिया बार्बे। इट इज ऑल्सो वेरी कॉमन, जब आप शेव करते हो ना तो स्किन के ऊपर बहुत छोटे 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 एब्रेशन हो जाते हैं। नाउ दैट एंट्री पॉइंट बिकम्स अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, वहां पे वहां से एंटर हो जाता है एंड देन इट एंटर्स टू बॉडी।
Then we have is nail infection. Nail fungal infection is also very common and very difficult to treat. It may take at least 6 to 9 months to get treated, and maybe in certain conditions may not be treated 100%. Then we have is cruris, the V area, yeah, which is called jockage. And then we have PDs. PDs is an toe nail के बीच में या toes के बीच में जहाँ पे बहुत ज़्यादा पसीना accumulate हो जाता है, या those people who are actually wearing shoes एंड सॉक्स पहन के रखते हैं, तो वहां पे स्वेट एक्यूमुलेशन की वजह से भी हो सकता है, तो दैट इज टीनिया पेडिस. एंड जब हाथ में होता है इट इज कॉल्ड टीनिया मैनम. सो दीज आर 5 6 different types of fungal infection, more or less similar, but yes, divided as per the names of the body parts. राइट। तो डॉक्टर, हमने चलिए फंगल इन्फेक्शन के बारे में बात किया जो फोरहेड में सर में होता है, टीनिया कैपिटिस यू मेंशन। तो अगर अंदर चला जा रहा है तो ट्रीटमेंट कैसा होता है इसमें? व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, या टाइम लगता है? ऑल्सो नीड्स के बारे में भी आपने कहा, तो हाउस होल्ड में तो अक्सर औरतें दे आर सो मच यूज टू कि पानी से कांटेक्ट होना ही Correct. पड़ता है एवरी Correct. टाइम। Yes. तो हाथ मैंने तो जितने भी देखा है लेडीज को स्पेशली, हाथ हमेशा गीले रहते हैं उनके इफ दे आर Correct. वर्किंग एट होम। तो Correct. कैसे डील करे वो लोग इस चीज से? सी यू आस्क टू थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने बोला कि स्कैल्प में हो रहा है तो बालों में अंदर चला गया तो कैसे ट्रीट करें. सी हम्म। एंटी फंगल जो मेडिसिन है ना वो इतनी अच्छी है, टचवुड, राइट, एंड नाउ व्हाट वी हैव इज द बेस्ट ऑफ बेस्ट मेडिसिन अवेलेबल. बट राइट हम्म। यूजेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई हैव सीन मेनी पेशेंट्स जो कीटोकोनाजोल कभी भी लगा लिया, किसी ने इट्राकोनाजोल कभी भी खा लिया, तो वो नहीं होना चाहिए. व्हाट वी कैन डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिवेंशन. तो जैसे आपका हेयर हाइजीन है, ट्वाइस इन अ वीक हेयर वॉश, स्कैल्प वॉश इज कंपलसरी. देन डिपेंडिंग ऑन योर वर्क, जैसे आप जिम कर रहे हो या आपका हाई स्वेटिंग अगर बॉडी टेंडेंसी है या सीजन ऐसा है कि समर है तो डेली स्वेट हो रहा है, तो यू कैन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी एज वेल. एंड देन हाउ यू ड्राई इट, दैट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. लाइक द वे आपको वॉश करने के बाद यू हैव टू अप्लाई गुड कंडीशनर एंड पैड ड्राई विद द टावल. अभी माइक्रो फाइबर टावल्स भी बहुत कॉमन है बिकॉज दे विल प्रिवेंट योर हेयर ब्रेकेज. And then serum application. Now this is the way to correct way to wash your hair, and then wash your scalp. Now this is the pattern to prevent it. But if you have actually dandruff है या कैसे पता चलेगा कि मुझे स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन है. सो इफ यू फेसिंग ना, जिसको बहुत ज्यादा स्वेट होता है, दे समटाइम्स फील के वहां पे स्मेल आ रही है, तो फिर इचिंग होना या फ्लेक्स बनना, दिस इज अ साइन ऑफ स्कैल्प के ऊपर फंगल इन्फेक्शन. नाउ इफ यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, नाउ एज एन लेमैन या एज एन ऑडियंस, व्हाट यू हैव टू टेक द मैसेज होम इज कि आपको पता होना चाहिए कब डॉक्टर के पास जाना है और क्या नहीं करना है. रेस्ट ऑल द डॉक्टर विल टेक गुड केयर ऑफ. बट आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है. सो फॉर हेयर, जैसे हमने लेडीज ने बहुत कॉमन देखा है कि बाल धो लिए उसके बाद ड्राई करना हम छोड़ देते हैं, हम भूल जाते हैं, हम उससे बंद लगा के घर के काम में लग जाते हैं. So हम्म। never do that. That is the worst the habit we have seen in Indian households. बिकॉज आप बन बना लेते हो, आपका जो हेयर है उसके अंदर एयर ड्राइंग नहीं हो पा रहा है, दैट बिकम्स अ सोर्स ऑफ फंगल इन्फेक्शन, फंगस ग्रोथ. दैट आप हम्म। उसको डेंड्रफ बोल दो, आप उसको इचिंग बोल दो, एंड दैट मे प्रोग्रेस. अब उसका फिर वो विशियस साइकिल चलता रहेगा. व्हाट वी कैन डू इज जस्ट कीप योर हेयर ओपन, लेट इट एयर ड्राई. आपको ब्लो ड्राई भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपली 3 4 घंटे में पूरा ड्राई हो जाता है, देन यू कैन हैव योर ओन हेयर स्टाइल. दिस इज वन. नाउ दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो देन व्हाट कैन यू डू. लाइक एंटी डैंड्रफ शैम्पूज आर वेरी इजीली अवेलेबल ओवर द काउंटर, या टीवी में भी बहुत एड्स देखे हैं. तो द करेक्ट वे टू यूज एंटी डैंड्रफ शैम्पू इज टू यूज देम ऑन स्कैल्प. तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू से बाल नहीं धोना है. मतलब आपने नहाने के टाइम पे बाल गीले किए, शैम्पू ले लिया, पूरे बालों में लगा लिया, दैट इज द वर्स्ट थिंग यू कैन एवर डू टू योर हेयर, बिकॉज दैट विल लीड टू हेयर ब्रेकेज. क्योंकि कीटोकोनाजोल इज हार्श ऑन योर हेयर. हमें फंगल इन्फेक्शन स्कैल्प पे है तो हमें क्या करना है, आपको पहले अपने रूटीन शैम्पू से पहले हेयर वॉश कर लेना है. यू रिमूव द डर्ट और ऑयल और स्वेट जो भी है, पूरा बाल क्लीन हो गए. उसके बाद यू हैव टू टेक लिटिल अमाउंट ऑफ योर एंटी डेंड्रफ शैम्पू विच मे कंटेंट कीटोकोनाजोल और साइक्लोपाइरोक्स,
and then gently massage on your scalp. Let the scalp get maximum time in contact with your shampoo. 2 to 3 मिनट या 5 मिनट आपने जो भी रखा है, स्कैल्प के ऊपर रखना है उसको, हेयर के ऊपर नहीं रखना है. एंड देन रिंस इट ऑफ, जस्ट वॉश विथ प्लेन वाटर एंड लीव इट, एंड देन यू कैन अप्लाई कंडीशनर एंड देन वॉश, बिकॉज दैट विल लीव अ रेसिडुअल इफेक्ट. आपके एंटी डेंड्रफ या एंटी फंगल इफेक्ट बहुत लंबे टाइम तक चलेंगे. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप यू कैन एवर हैव विद अ डॉक्टर. राइट, राइट। वेल, जितने भी लोग आज हमें देख रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट पॉसिबल एडवाइस, बट प्लीज नोट बिफोर, बिकॉज हम हमारे शुरुआती फेज में अभी भी सेशन के, तो सबका सबका स्किन टाइप अलग होता है, सबका हेयर टाइप अलग होता है। मेक श्योर कि आप कोई कंक्लूजन में नहीं आए। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर, हम अक्सर आजकल हम जो देख रहे हैं कि कोई भी इन्फ्लुएंसर को देख लिया, कोई दोस्त को देख लिया, किसी का बाल बहुत अच्छा है, उसके स्किन केयर रूटीन को, उसके हेयर केयर रूटीन को हम फॉलो करके खुद भी कर रहे हैं वो चीज़, बट इट्स नॉट वर्किंग फॉर अस, हमारे लिए काम नहीं कर रहा है वो चीज़। पॉसिबल रीज़न यही हो सकता है कि अलग है हम, एवरीबॉडी इज़ डिफरेंट, सबका स्किन अलग है, सबका हेयर अलग है, तो ये क्या हार्म कर रहा है लोगों को? लोग कोई भी वीडियो देख के, कोई भी एड देख के लोग आजकल प्रोडक्ट्स खरीद ले रहे हैं, एंड दे आर यूजिंग इट डे इन एंड डे आउट। सो हाउ हार्मफुल इज दिस? क्या ये सही उपाय है करने का? Correct. See, I'm glad that you touched upon this topic because it's हुँ, very sensitive yet very important for us to actually at least work on that. See, market is flooded with all the cosmetic products and skin being the easiest way to get in. लोग हुँ, उसमें इन्वेस्ट हो रहे हैं अभी. इन्फ्लुएंसर्स सब लोग वहां पे काम कर रहे हैं अपना. But the thing is that you should meet a doctor, consult with a dermatologist. Specifically, I'm talking about dermatologist because again, doctor के अंदर भी इतने सारे various people है. They claim to be cosmetologists, but they are not. So understand that we have undergone a 10 years of excessive training for this to understand each and every skin type, hair type, what products will suit your body, and what treatments your body needs. So yes, it is very important. But nowadays, I'm happy that some people, even including me, we have come up with, as in on social media, to give people a good advice, a good insights about the products and what to use and what not to invest in. राइट। नाउ अगेन स्पीकिंग अबाउट फंगल इन्फेक्शन, डॉक्टर, हम फिर से आएँगे टॉपिक पे। आपने कहा एक और टाइप का फंगल इन्फेक्शन है जो वजाइनल एरिया में या प्यूबिक एरिया में हम देखते हैं होते हुए। इट्स पेनफुल, पेनफुल है बिकॉज़ इंटिमेट एरिया है, और हमेशा पॉसिबल नहीं है कि एयर में हम ओपन करके रखें उस एरिया को, इट्स नॉट पॉसिबल। इट नीड्स टू ब्रीथ। तो कारण क्या होता है उसका? क्या पब्लिक टॉयलेट से एक कारण हो सकता है कि ऑन अ रेगुलर बेसिस जो ऑफिस में काम करते हैं, जिन्हें बाहर मोस्टली रहना पड़ता है, उनके पास कोई उपाय नहीं है और टॉयलेट्स यूज़ करने का, दे नीड टू यूज़ अ कॉमन टॉयलेट। तो क्या ये कारण है, एंड हाउ टू डील विद इट? हाउ टू डील विद द पेन? ऑल्सो ऑल्सो एक और क्वेश्चन है मेरा। अक्सर अक्सर जो पेशेंट्स जिस प्रॉब्लम से डील करते हैं, व्हेन दे आर डीलिंग विद द फंगल इन्फेक्शन इन द वजाइनल एरिया, किसके पास जाना है? डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सो प्लीज़ इफ यू कैन आंसर द क्वेश्चंस। चलो शुरू से शुरुआत करते हैं. तो फर्स्ट थिंग वाज कि आपको जेनिटल एरिया में कुछ भी प्रॉब्लम है, सो देयर इज अ टू डेमार्केशन. फर्स्ट इज कि अगर स्किन के ऊपर कुछ भी है, इवन ऑफ जेनिटल एरिया की स्किन पे, यू हैव टू गो टू डर्मेटोलॉजिस्ट. एंड बियॉन्ड द लेवल ऑफ वजाइना से इंटरनल, इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, देन यू हैव टू गो टू गायनेकोलॉजिस्ट. Many of our हुँ, skin problems are also dealt by gynecologist, but ideal scenario is this. सो व्हाट वी यूज, हुँ, अब जो आपने बोला कि वजाइनल एरिया में या प्यूबिक एरिया में, पर से व्हाट वी कॉल इज जेनेटेलिया. तो जेनेटेलिया पे हुँ, फंगस होना बहुत कॉमन है. तो फर्स्ट, हुँ, देर इज अ पैरासाइटिक फंगाई विच इज कॉमनली सीन इन वेजिना, और वो नॉर्मल है. बट देन हुँ, व्हाट हैपेंस कि कोई भी फंगस या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब उसके ऊपर ऑयल और उसको स्वेट और क्लोज्ड एनवायरनमेंट मिलेगा, इट विल ग्रो. हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, आइडियल सिचुएशन 37 to 40 डिग्री के ऊपर कोई भी बैक्टीरिया ग्रो करते हैं.
तो उसको mm, अंदर एक इंटीमेट एरिया मिलता है जहाँ पे कोई और एयर सर्कुलेशन नहीं है एंड सनलाइट एक्सपोजर नहीं है, तो दे विल ग्रो. नाउ दिस इज देयर mm, बायोलॉजी. नाउ व्हाट वी कैन डू अबाउट इट, कि हमें पता है कि मुझे 4 to 5 या 6 आवर 8 आवर्स को जॉब है, तो हमें टाइट क्लोथिंग अवॉइड करनी है, हमें ऐसे ऑफिस वेयर यूज करने हैं जो एयर ब्रीदेबल हो. यू कैन यूज कॉटन फैब्रिक एज वेल. अवॉइड पॉलिएस्टर एज मच एज पॉसिबल. फिर जो लेगिंग्स यूज करते थे, अब तो शायद बहुत सारे लोगों ने लेगिंग्स बंद कर दिया है, बट फिर भी कॉमन प्रैक्टिस है इंडियन कल्चर में, वी वेयर लेगिंग्स. फिर हम लोग सॉक्स पहन के रखते हैं, स्टॉकिंग्स पहन के रखते हैं, तो वो अवॉइड करना है. नेक्स्ट थिंग, यू ऑलरेडी आस्क कि पब्लिक टॉयलेट्स हैं, तो अगेन mm, अपनी वर्क स्पेस को हाइजीनिक रखना हमारी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड right, हमारे कलीग्स की भी है. अगेन आप उसकी हाइजीन के ऊपर काम कर सकते हो अपने वर्क प्लेस पे. देर आर वेरी स्प्रे अवेलेबल जो आप टॉयलेट की सीट पे स्प्रे करके देन यू कैन यूज दैट. एंड देर आर फीमेल के लिए सेपरेट अभी तो बहुत मार्केट कंज्यूमेबल्स मिल रहे हैं. वी कैन नॉट वर्क ऑन, वी कैन नॉट चेंज दैट योर वर्क प्लेस. वॉट वी कैन चेंज इज वी कैन चेंज आवर ओन सेल्फ. आप अपने बॉडी के ऊपर एंटी फंगल पाउडर्स अवेलेबल होते हैं बहुत कॉमनली, उसका कंटेंट रहता है क्लॉट्रिमाजोल. वो अब्जॉर्बल टैल्कम पाउडर होता है. तो उससे क्या होता है कि जो भी स्वेट आपकी बॉडी जनरेट करती है वो अब्जॉर्ब कर लेता है. आप स्वेटिंग को नहीं mm, रोक सकते हो, आप उसको, उससे हार्म होना तो रोक सकते हो, दैट इज इन योर हैंड. mm, तो हम जो mm, अभी भी टेक होम मैसेजेस या जो टिप्स दे रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट, अवॉइड टाइट क्लोथिंग्स, अवॉइड पॉलिएस्टर क्लॉथिंग्स, आपका ब्रीदेबल फैब्रिक होना चाहिए. देन आप हर घंटे में एक 5 मिनट का वॉक ले सकते हो, दैट इज गुड फॉर योर हेल्थ एज वेल. और उससे क्या होगा कि इंटरनल एरिया में सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपका एयर सर्कुलेशन. सो दैट विल हेल्प. कोई भी अगर अगर बैक्टीरिया ग्रो भी कर रहा है ना, तो फिर वो धीरे धीरे एयर की वजह से ड्राई आउट हो जाएगा, आपका स्वेटिंग ड्राई आउट हो जाएगा. एंड अगर आप फेस कर रहे हो एक्चुअली, अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है, तब कंपलसरी एंटी फंगल पाउडर यूज करना है आपको, वो आप ध्यान रखो. right, तो जेनेटल right, केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट. और जैसे हमने इस बारे में बात किया कि गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना है या डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलना है, यूजुअली 90% जब भी टीन या फंगल इन्फेक्शन है, दैट इज टेकन केयर बाय डर्मेटोलॉजिस्ट ओनली, और वी हैव द एक्चुअल मेडिसिन फॉर दैट. और जब वजाइना के अंदर कैंडिडियल इन्फेक्शन होता है, सी दिस इज वन थिंग, टीनिया क्रूरस. नाउ सेकंड थिंग है कि वजाइना के इंटरनल एरिया में फंगल इन्फेक्शन होता है, जो हमने दिखा है व्हाइट डिस्चार्ज, कोई बोलता है उसको व्हाइट mm, कर्ड डिस्चार्ज होता है. इट इज वेरी mm, इची mm, और थोड़ा सा अपने आप को भी एम्बेरसिंग फील करवाता है. नाउ व्हाई दिस mm, हैपेंस? तो वजाइना के अंदर फंगल इन्फेक्शन होना, वो ऐसा ट्रांजिशन बोल सकते हो कि नॉर्मल फंगाई आर ग्रोइंग इनटू अ बैड फंगाई. क्यों ऐसा होता है? mm, जब आपकी हाइजीन ठीक नहीं है. मैं mm, बताऊंगी हाइजीन अच्छे के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है. बट व्हाट हैपेंस इज कि जब आपका लॉन्ग टाइम तक विदाउट एनी वाटर और क्लेंजिंग जब आप बैठे रहते हो, तो फंगस टेंड टू ग्रो. और दूसरा एक रहता है डायबिटीज. डायबिटीज, मेनोपोज. अपना जो इस्ट्रोजन हार्मोन है ना, इट इट सेव्स यू फ्रॉम ऑल दिस बैड फंगस. एंड डायबिटीज के अंदर क्या रहता है कि वहां पे शुगर का अपनी बॉडी में जितना लोड रहता है, तो फंगस को सामने से ही खाना मिल रहा है. शुगर, आ mm, जाओ खा जाओ मुझे, तो बैक्टीरिया mm, और mm, फंगस विल ग्रो. एंड फिर आपको आने लगती है सीवियर इचिंग. नाउ आप जब को आपको जब भी इचिंग होती है ना, आप ऊपर के लेयर को स्क्रैच कर देते हो, खुजा देते हैं. right, जाने के mm, बाद इट बिकम्स पेनफुल. सो व्हेन यू सेड के right, वहां पे जेनिटल पे पेनफुल रहता है, तो दैट इज बिकॉज आपने खुजा दिया है वहां पे. इवन mm, सबकॉन्शियसली भी mm, हो सकता है ना, रात को सोने के टाइम पे आपने खुजा दिया, आपको पता भी नहीं है. एंड देन इन द डे टाइम यू फील इरोजन्स, एंड देन वहां पे जैसे ही इधर यूरिन और वाटर कांटेक्ट आता है, आपको पेन फील होता है, या फिर क्लोथ्स अगर टच होता है तो आपको पेन फील होता है. तो वही है, ट्रीटमेंट करवाना कंपलसरी है. द फर्स्ट साइन ऑफ फंगल इन्फेक्शन इन जेनिटेलिया, जेनिटल केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इसी right, के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट बात बोलनी है वी वॉश या वजाइनल वॉश की, जो टीवी में बहुत ज्यादा mm, right, मार्केट right. में हाँ, वो यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. इवन आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम ऑडियंस एज वेल कि कितने परसेंट फीमेल है आपके घर में, कोई भी है वो यूज कर रहा है.
तो इट्स अ बिग नो। आप बहुत Yes. ज्यादा शॉक हो जाओगे ये जान के कि एक डॉक्टर आके ऐसा बोल रहे हैं, जो चीज मार्केट में इतनी ज्यादा प्रमोट हो रही है, तो कोई डॉक्टर Mm-hmm. कैसे उस चीज को मना कर रहा है? बिकॉज द साइंस इज, हम सदियों से, हाँ, हमारे ह्यूमन बीइंग चलते आ रहे हैं, किसी ने कभी भी वॉश यूज नहीं किया है। हमारे Right. फैमिली में भी जितनी भी पीढ़ियां हैं, किसी भी लेडीज ने यूज नहीं किया है। तो वाई वाई वी, हमें क्यों जरूरत है? हमें जरूरत नहीं है। हमारी बॉडी को दिन में 1 या 2 बार साबुन से और या बॉडी वॉश से और पानी से क्लीन करने की जरूरत होती है, टू किल नॉर्मल ग्रोइंग ऑर्गेनिजम्स। एंड देन जेनिटेलिया पे हम जब भी वॉशरूम यूज करते हैं, उसके बाद आपको प्लेन वाटर से क्लीन करना होता है। आप Mm, जितनी mm, बार कोई भी एसिडिक चीज या अल्कलाइन चीज या सोप यूज करोगे, उतनी बार आपकी जेनेटल के पीएच चेंज होती जाएगी। दिस इज द mm, बिगेस्ट रीजन फॉर ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ग्रो। जैसे हमारे mm, बॉडी पे नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी वॉश हो जाते हैं। जैसे आप वी वॉश या कोई भी वॉश यूज करते हो, जेनेटल वॉश यूज करते हो, तो नॉर्मल बैक्टीरिया मर जाते हैं, हानिकारक बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। अब क्या होगा? mm, हानिकारक बैक्टीरिया है, दे ग्रो रियली फास्टर, और mm, आपके mm. बैक्टीरिया जो है उसका रीजनरेटिव टाइम कम है, तो आपको Right. प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी। तो जो लोग यूज करते हैं ना, उनको फायदा होने से ज्यादा लॉन्ग टर्म नुकसान ज्यादा हो जाता है। एंड Mm, अगेन mm, वो mm. सब जो एसिड्स हैं या अल्कलीन है, वो दे आर केमिकल्स, तो वो जेनेटिलिया की स्किन को हार्श करते जाते हैं, खराब करते जाते हैं। तो आपका जो Right, right. नॉर्मल स्किन बैरियर है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। राइट राइट एग्जैक्टली डॉक्टर, मैं मेरा सवाल यही होने वाला था आपसे। माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट टू बी दिस कि बहुत हाइप है मार्केट में आज की डेट में भी। अभी अभी आई थिंक थोड़ा सा अवेयरनेस ज्यादा हो गया है, बिकॉज हमारी डर्मेटोलॉजिस्ट भी बार बार बोल रहे हैं कि स्टॉप यूजिंग सच प्रोडक्ट्स। नो और नीड, हमने कहाँ यूज नो किया था, नीड। पहले कौन यूज राइट करता था? राइट राइट। नीड से याद आया कि पीपल, ह्यूमन females specifically, हमें we love smelling good, so they have a या tendency that the vagina needs to smell good, but ऐसा नहीं है, that is abnormal. uh, the way your vagina smells is एक्चुअली very much normal, we have to accept it. Smelling good का ये कुछ अलग है, लेकिन सोशल मीडिया में अगर हम देखें, हमारे peers में भी थोड़ा सा है that या it needs to smell good for some reason, और इसी चक्कर में they are using those products again and वेरी again, बैड जो फॉर योर स्किन, बहुत हार्मफुल बहुत फॉर योर बहुत हार्म स्किन। कर रहा है. Because we are talking about this, doctor, can UTI also worsen or trigger fungal infection in the vaginal area? No, no. These two things are totally different. Urinary tract infection. Urinary tract is different in male, in females, as in from Hmm. the reproductive areas, and it has nothing to do with your the. But yes, again, there are certain secondary factors. Like if you are having urinary tract infection, so then why are you having urinary tract infection? You must be not having good hygiene. So these are Right. supportive factors which can be common for both, but direct Hmm. association, no. नो, तो Yeah. मतलब मैं हाइड्रेशन के बारे में भी बात करूंगी यहाँ पे, बिकॉज स्किन से हम बात कर रहे हैं, स्किन के बारे में, तो हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सभी को पता है। तो जितने भी लोग हैं कम पानी पीने का आदत है, हम यूटीआई देखते हैं नॉर्मली वो लोग फेस करते हैं जो बहुत कम पानी इंटेक कर रहे हैं, चाहे लाइफस्टाइल की वजह से ही हो, व्हाटसएवर रीजन की वजह से। सो व्हाट इफ द पर्सन इज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम फंगल इन्फेक्शन, और उसके ऊपर वो इंसान पानी भी कम पी रहा है या पी रही है, और उनको यूटीआई का इश्यू भी हो गया, क्या ये दोनों चीज जब एक साथ होती है तो क्या ये वर्स्ट हो सकता है? हाउ टू डील विद दैट? I was having the same thinking in my mind कि इमेजिनेशन, राइट राइट राइट। इतना कुछ कैसे हो सकता है? So if you are having UTI, urinary tract infection, have good amount of water, 2 to 3 liter, 4 liter will be enough, क्योंकि वो जरूरी हम्म, है आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। नाउ डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स आपका यूरिन से भी डिटॉक्स होता है, आपका स्वेट से भी डिटॉक्स होता है। एंड ट्रस्ट मी, स्वेटिंग इज द बेस्ट थिंग यू कैन एवर हैव एज अ डिटॉक्स, बिकॉज इट ओपन्स योर पोर्स। उसकी वजह से ही सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री बंद हो जाती है, वॉश आउट हो जाता है। हम्म, सो इट्स अ गुड थिंग हम्म। टू हैव। हाइड्रेशन अच्छा है, उससे यूरिनरी इन्फेक्शंस भी कम हो जाएंगे, एंड इट प्रिवेंट्स ऑल द फंगल बैड फंगस का ग्रोथ।
बट द कैच ओवर हियर इज कि अगर आपको स्वेट ज्यादा हो रहा है तो देन उसका इवेपोरेशन भी होना चाहिए, आप उसको भूल मत जाओ. People Hmm. always tend to do one part of the advice and miss out on the second half, which should not Right. occur. Because if you are see the sweating के साथ में एक और चीज आ जाती है, जिम एंड एक्सरसाइज. जो हम सब बोलते हैं एक्सरसाइज करो, जिम करो, ये करो. Hmm. फिर उसके बाद नहाना या उसके बाद की केयर आप भूल जाते हो, आपके क्लोथ्स की केयर भूल जाते हो. अपनी केयर तो नहा लिया पर क्लोथ्स में वही स्वेट रह जाता है. तो Hmm. द सेकेंड हाफ इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट फंगल इन्फेक्शन. राइट। डॉक्टर, जिम के बारे में क्योंकि हमने बात किया है, मैंने हाल फिलहाल में ही देखा है किसी को, बिकॉज मे बी जिम से ही हुआ है, रेगुलर जिम जाते हैं और हाथ में देयर हैज स्टार्टेड बीन एन लीजन जो धीरे धीरे बढ़ रहा है और एक्सपैंड हो रहा है। तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, प्रोबेबली जिम से। तो सभी स्वेटेड रहते हैं जिम में, सब सारे इंस्ट्रूमेंट्स है या जो भी वहां पे वेट्स है सभी मिलके उठा रहे हैं। तो हाइजीन कैसे मेंटेन करें जिम एरिया में स्पेशली? See, nahin, the gyms I have been to, touchwood, they have been really good. They have been sanitized. क्योंकि जिम का एक इंटरनल एटमॉस्फेयर ही ऐसा रहता है कि लोग हेल्थ के लिए आते हैं, हेल्थ कॉन्शियस लोग आते हैं. तो द दोज जिम आई हैव बीन थ्रू, आई हैव सीन के दे कीप रियली गुड सैनिटरी सैनिटाइजेशन ऑप्शंस. स्प्रे सैनिटाइजेशन होते हैं, इंस्ट्रूमेंट सैनिटाइजेशन होते हैं. दे आर अच्छी थिंग है, वो करना जरूरी भी है उनके लिए. बट एज अ मेंबर व्हाट वी कैन डू इज दैट हम जितना कैरी कर सके हम अपनी चीजें कैरी करें, और जितना हम वन कॉमन यूज में रहता है तो वी मेक श्योर दैट हमें ना हो. और दूसरों का हमें पता नहीं है, बट एटलीस्ट हम अपना इतना कर सकते हैं. तो सब अगर अपना सोचेंगे ऐसा करके, all those people who have actually fungal infection या patch, तो get yourself treated. और इससे maybe in the later half of the session we will also touch upon the OTC creams and जो लोग खुद ही लगा लेते हैं और सोचते हैं कि चला जाएगा, वो हम्म। नहीं होता है. तो राइट। हाँ, सो एज यू सेड कि जिम के लिए अगेन जितना हो सके खुद का चीजें यूज करें, और जितना आप कॉमन यूज कर रहे हैं दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक गुड केयर ऑफ योर इंस्ट्रूमेंट्स और देयर इंस्ट्रूमेंट एज वेल. एंड फॉर द जिम ओनर्स ऑफ कोर्स आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स को इरिस्पेक्टिव ऑफ किसी ने यूज किया है कि नहीं किया है, आप दिन में एक या दो बार जितना आपका मेंबर्स लोड है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको सैनिटाइज करना रखें. राइट। And this डॉक्टर, is एक और this is same हमें for all the common amenities, same for all the common things. जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, तो you never know. हम्म। See, touching upon that thing, I went to a mall and I saw the changing room. There was one हम्म। person just right next to me, and she was having a large patch of fungal infection on her shoulder, and I saw her हम्म। going in the changing room just before me. सो आई थॉट कि ये जो कपड़े पहन के चेंज करके आएंगी तो देर आर चांसेस कि वो कपड़ों में वो चीज लोड होती जाएगी. तो अगेन सिर्फ जिम ऐसा नहीं है, ये हर पब्लिक एरिया के लिए अवेयरनेस की जरूरत है. हमें पहले सेल्फ अवेयर होने की जरूरत है कि इफ आई एम हैविंग सम इन्फेक्शियस प्रॉब्लम आई शुड ट्रीट देम, बिकॉज आई विल बी अ सोशल, दिस इज अ सोशल प्रॉब्लम. आप किसी को इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकते हो. तो अपने से ही सब कुछ चालू होता है पहले तो. राइट, राइट। बिल्कुल, पर्सनल हाइजीन के बारे में हम बार-बार फ़ोकस कर रहे हैं आज के डेट में, बिकॉज़ फंगल इन्फेक्शन है और हाइजीन मेंटेन करने से सिर्फ़ फंगल इन्फेक्शन ही, बाकी बहुत सारी चीज़ें भी बहुत आसानी से हम डील कर सकते हैं उन सारी चीज़ों से। नाउ डॉक्टर, वी हैव हर्ड ऑफ अनदर टर्म कॉल्ड फंगल एक्ने। सो व्हाट इज़ दिस? क्या होता है ये फंगल एक्ने? या सो कॉमनली व्हाट वी सी इज कि कभी कभी प्यूबर्टी पे हमें पिंपल हो जाता है, यहाँ पे चीक्स पे होता हुँ। है. फिर व्हाट वी सी इज मैंडिबुलर एक्ने विच इज हार्मोनल, अबव 30 एज के ऊपर यहाँ पे पिंपल देखने को मिलता है. सी दीज टू साइड्स आर एक्चुअल एक्ने. अब एक्ने के अदर वेरिएंट्स आना चालू हो गए हैं. वो क्या होता है, तो विल अंडरस्टैंड विद दिस मिनिएचर. यहाँ पे आपका फंगस का ग्रोथ हो रहा था, जैसे हमने बात करी कि फंगस एंटर्स इन द एपिडर्मिस, इन दो लेयर्स के बीच में वो रहता है. अब जब आपने वैक्सीन करी, या फिर आपने टाइट कपड़े पहन लिए, या फिर आपने जब लोग वो बैडमिंटन प्लेयर हेडबैंड लगा के घूमते हैं, तो ये सब जब आपने स्किन को ट्रैप कर लिया, ऐसे आपने स्किन के पोर्स को बंद कर दिया, तो ये जो लेयर में फंगस है इट गेट्स एंट्री इनटू द हेयर कैनाल. यहाँ पे बाल है,
हेयर कैनाल में वो अंदर घुस जाती है, वो मतलब वहां पे आराम से रहती है। वहां से एक पॉपअप होके निकलता है बाहर, पिंपल जैसा। तो दैट इज फंगल एक्ने। फंगल एक्ने हम्म, कॉमनली सीन ऑन बैक। आपने जो जहाँ पे वैक्स करते हो या शोल्डर पे, बैक पे बहुत कॉमन देखने को मिलता है फंगल एक्ने। हेड पे देखने को मिलता है, जो हेडबैंड पहनने की जिनको आदत होती है ना, उन लोगों में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है हेडबैंड की वजह से। तो उसमें पिंपल बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया नहीं होता है, बिकॉज ऑफ फंगस होता है। तो यूजुअली हम्म, पिंपल के लिए सब लोग क्लिंडामाइसिन लगाते हैं, जेल लगाते हैं एरिटॉप वाला। वो वर्क नहीं कर रहा है, तब जाके उनको पता चलता है कि दिस इज फंगल एक्ने, हमें उसको फंगल एंटी फंगल वाले वॉश से क्लीन करना पड़ेगा, एंटी फंगल मेडिसिन से क्लीन करना पड़ेगा, ठीक हो जाएगा। बट यूजुअल साइट्स आर योर बैक। right. Now let's talk about the treatment which are available for fungal infection. क्या-क्या currently treatments available है and प्रोसीजर कितना So लंबा है, कितना टाइम I लगता है would लोगों को? actually, yeah, please. लोगों को अक्सर अक्सर इसी चीज से प्रॉब्लम है कि कितना टाइम लगेगा, कितनी जल्दी ठीक हो जाएंगे हम। तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट क्योर्ड एंड व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स अवेलेबल? तो हम मैं ना इसमें एक आपको एक कैच देना चाहूंगी। आपने वो एड तो देखा ही होगा, दांत खाज खुजली का एक ही इलाज, क्या था वो? हाँ। हाँ, Remember? हाँ। तो देर आर फ्यू थिंग्स इन मार्केट, बहुत ज्यादा प्रमोट हो रही है। तो दांत खाज खुजली तीन अलग अलग चीजें हैं, उसका एक इलाज नहीं हो सकता है। ठीक है। हुँ, और जो भी मलम या जो भी क्रीम्स आपको दिए जा रहे हैं, इधर दे कंटेन वेरी बैड स्टीरॉइड्स और दे कैन कंटेन एसिड्स। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम होती है व्हेन यू अप्लाई स्टीरॉइड्स। So there are certain medicines on the name of Betnovet, Lobet, Clobet, Btex Malam, Mahindra Malam. I have seen n number, itch guard, ring guard. So ये सब चीजें क्या काम करती है? आपका फंगस यहाँ पे है, एज आई सेड कि फंगस कैन नॉट पेनिट्रेट इनटू योर डीपर लेयर्स। ये जो ब्लू दिख रहा है ना, वो एक आपका रक्षा कवच है, इट इज अ टफेस्ट लेयर। उसको फंगस कैन नॉट पेनिट्रेट। बट देन व्हाट हैपेंस, तो फंगस रहता है ऊपरी लेयर में, यहीं पे रहता है। तो जितना बाहर है इतना हमें एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट ट्रीट करना इजी बन जाता है कि ऊपरी परत में है उसको हटा दो तो ठीक हो जाएगा। बट आप खुद ही अपना प्रॉब्लम बढ़ा रहे हो। कैसे बढ़ रहा है? जैसे आपने खुद ने मार्केट से लेके एक ट्यूब ले लिया विच इज मे बी बेटनोवेट या लोबेट लोबेट। तो उससे आपका ये जो रक्षा कवच है ना ब्लू कलर का, उसमें छेद होना चालू हो जाता है। देन फंगस विल गेट एंट्री इनटू योर लोअर लेयर, जहां पे ब्लड जा रहा है, उसको आपका न्यूट्रिशन मिल रहा है, वो आपका खाना खा के जी रहा है। और फिर दूसरा इससे क्या होगा कि वो नीचे के लेयर में है, जो जिसकी खुद की औकात नहीं थी अंदर उतरने की, वो अब अंदर उतर के बैठा हुआ है। आपको ऊपर से दिखना बंद हो गया, खुजली आना बंद हो गया, आपको लगा इस ट्यूब ने अच्छा कर दिया, ठीक कर दिया मुझे। पर आप एक्चुअली ठीक नहीं हो रहे हो, आप अपना प्रॉब्लम बढ़ा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपका न्यूट्रिशन खा के जितना फंगस बढ़ेगा, वो दूर होके अलग अलग जगह से बाहर निकलेगी। तो बहुत लोगों जब ये सब मार्केट से ट्यूब लेके हमारे पास लगा के आते हैं, तो वो बोलते हैं मैम पहले जब लगाते हो ना तो खुजली चली जाती है, अच्छा लगता है। पर फिर हुँ, वो जब बंद करते हैं तो हफ्ते 10 दिन में वापस आ जाता है। So राइट, that is why using any of the OTC medicine will leave you with more fungus. राइट, You never राइट, do that. And second राइट। important thing is कि वो फंगस मिटाना फिर हमारे लिए भी इतना डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों डिफिकल्ट हो जाता हुँ, है? हुँ, क्योंकि जो चीज ऊपर से आसानी से मिट जा रही थी, उसको आपने अंदर उतार दिया। अब अंदर से मिटाना 100% में नॉट बी पॉसिबल। वो जब हेयर रूट्स के कैनाल में अंदर छुप के बैठ जाएगा, तो वहां तक कौन सी दवाई पहुंच पाएगी? So then it जी, becomes difficult for us to treat, and as well उसको difficult कर हो जाता है, उसमें recurrence के chances बढ़ जाते हैं। जब हमने ठीक कर दिया फिर भी हुँ, उसके चार बच्चे अंदर छूट गए हैं, तो वो कभी तो बाहर निकलेंगे। जब भी स्वेट आएगा, जब भी पसीना आएगा, जब भी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होगा, वो बाहर आ जाएंगे। तो रिकरेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। So it's राइट। a humble सो request, please don't use OTC tubes. It will only and only worsen the condition. राइट।
राइट। लोग नॉर्मली ये सारी चीजें यूज करते हैं पैसा बचाने के चक्कर में, बट बढ़ समहाउ जाती है। यू आर वेस्टिंग मोर। आप ज्यादा खर्चे कर रहे हो, आप अपनी हेल्थ को रिस्क पे डाल रहे हो, अपने स्किन स्किन हेल्थ को रिस्क पे डाल रहे हो। सो इट्स द वर्स्ट थिंग यू आर डूइंग। ऑल यू कैन डू इज जस्ट विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस उनके एडवाइस, उनके सजेशंस, उनके रेफरेंसेस फॉलो कीजिए, एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव अ ग्रेट हेल्थ। हमारे एक्सपर्ट्स हमेशा मौजूद है आपको हेल्प करने के लिए विद द बेस्ट पॉसिबल एडवाइस। डॉक्टर, अगेन ट्रीटमेंट्स क्या-क्या अवेलेबल है, एंड हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक टू गेट क्योर्ड नॉर्मली? सी फंगल इन्फेक्शन का यूजुअली हम लोग कोर्स देते हैं फॉर 3 मंथ्स, बट उससे हुँ, पहले ही ठीक हो जाता है। उसके अंदर कैप्सूल हुँ, आते हैं, एवरीवन मे नो अबाउट द नेम्स, विच इज इट्राकोनाजोल, साथ में टर्बिनाफिन, फ्लूकोनाजोल, बहुत अच्छे लेटेस्ट मेडिसिन हैं। साथ में हुँ, हम देते हैं टॉपिकल्स, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री। वन इज योर ओरल टैबलेट्स, सेकंड इज योर टॉपिकल मतलब क्रीम्स, और थर्ड इज योर पाउडर एंड सोप। तो टैबलेट लेना कंपलसरी है, बिकॉज एज आई सेड कि यहाँ पे नीचे के लेयर पे जब आपकी फंगस घुस गई है ना, तो ओनली ब्लड कैन डिटेक्ट देम एंड किल देम। तो टैबलेट्स लेना कंपलसरी है। दूसरा है क्रीम, तो जो ऊपर के लेयर पे है, क्रीम कैन पेनिट्रेट अप टू 4 लेयर्स, तो उसमें जितना क्रीम अच्छे से लगाओगे वो ऊपरी परत में जितनी फंगस होगी वो क्रीम से ठीक हो जाएगी। And third thing is soap and powder, which is ketoconazole soap and clotrimazole powder. These three things are commonly available. वो तो मैं ऐसा भी सजेस्ट कर रही हूँ कि जिन लोगों को हाई रिस्क है, हाई रिस्क एज इन जैसे वर्किंग प्रोफेशनल है, जिनको 6 8 10 घंटे तक बैठ के काम करना है, ओबेसिटी है, फिर जैसे स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, या सीजन ऐसी है, या समर मानसून, तो आप प्लीज रेगुलर एंटी फंगल वाला पाउडर यूज करिए, एंटी फंगल वाला सोप यूज करिए। इट देयर इज नो हार्म इन यूजिंग दैम। और अभी तो उसके हुँ, इतने अच्छे वर्जन्स अवेलेबल हो गए हैं हम लोगों की लाइफस्टाइल को देखकर, कि बॉडी वॉश अवेलेबल है। कोई बोल रहा है मैं साबुन तो कभी यूज ही नहीं करता हूँ, तो यू हैव बॉडी वॉश अवेलेबल। फिर कोई बोलता है कि मैं ना ट्यूब नहीं लगा सकता हूँ, तो वी हैव स्प्रे अवेलेबल। फिर कोई बोलता है कि मैं ना हाथ में लेके ट्यूब नहीं लगा सकता हूँ, तो वी हैव सिल्वर मेटल कोटेड ट्यूब्स अवेलेबल। सो ट्यूब डायरेक्टली एप्लीकेटर के साथ आता है, तो आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। साइंस हैज इवॉल्व्ड सो मच कि उसने राइट। आपकी सहायता के लिए सब कुछ अवेलेबल कर दिया है। इट्स जस्ट दैट कि यू हुँ, हैव टू यूज देम। राइट। डॉक्टर, हमने इनिशियली आज के सेशन में ये सुना कि कंटेजियस है फंगल इन्फेक्शन, तो ये बड़ा चिंतित विषय है कि कंटेजियस है। तो फैमिली में हो रहा है लोगों को, हमने देखा है, मैंने अपने पर्सनल लाइफ में देखा है, ऐसे बहुत घर है जहाँ एरिया नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो कपड़े सुखाने का जगह नहीं है। ये एक बहुत मेजर इश्यू है। कपड़े धूप में नहीं सूख रहे हैं ऑन ए डेली बेसिस। ये एक बात हो गया। मॉनसून में बहुत सारे रीजन इंडिया में इस बार तो हम देख रहे हैं कि बहुत जगह पानी हुआ है, वाटर लॉगिंग हो रहा है, फ्लड हो रहा है बहुत जगह। सो कोई स्पेसिफिक एरिया मेंशन करके नहीं बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ इंडिया आर फेसिंग फ्लड्स। तो उनके लिए पानी डेली हो रहा है, अगेन धूप नहीं है, कपड़े धूप में नहीं सूख पा रहे हैं। तो ऑप्शन क्या है? धूप में कपड़े सुखाना ज़रूरी है? क्या कपड़ों को धूप लगाना ज़रूरी है अगर फैमिली में फंगल इन्फेक्शन हो रहा है? और अगर है, अगर धूप नहीं है, तो क्या अल्टरनेटिव्स हम अपना सकते हैं? यस, सी अल्टीमेटली साइंस इज कि आपको वाटर लॉगिंग नहीं होने देना है, राइट? धूप मिले हुँ, तो बहुत अच्छा है, एरेशन मिले तो बहुत अच्छा है, बट द सिचुएशंस जो मेंशन्ड आपने करी, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो इन हुँ, कंडीशंस में व्हाट यू कैन डू इज कि आप थोड़े से लाइट वेट क्लोथ्स पहने, जिसमें से इजीली एयर पास हो जाए, और वो इजीली हुँ, कम उसमें भी सूख जाए। हुँ, बेसिक कॉटन जो हम क्लोथ्स पहनते हैं, पतले कपड़े पहनते हैं, तो उससे क्या रहता है कि वो पास ऑन जल्दी सी, वो उसमें से एयर पास हो जाती है और उससे सूख जाता है। अगेन आयरनिंग इज गुड ऑप्शन। जब हुँ, आपको हुँ, डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलती है, तो आप आयरनिंग कर सकते हो। इवन फंगस जहाँ पे जेनिटल्स पे होता है, हम लोग बोलते हैं कि आप अंडरगारमेंट्स को भी आयरनिंग करने की आदत डाल दो। सुखा नहीं हुँ, सकते हो, तो इस तरह से बैक्टीरिया मर जाएंगे उसके अंदर। जैसे ही आप आयनिंग करोगे, तो वो गर्म भी हो जाएंगे, और बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव इन एनी एक्सट्रीम्स। वो तो अपने जहाँ उसको कोजी एनवायरनमेंट मिलेगा वहीं पे ग्रो करेगा, तो आप जितना एक्सट्रीम उसको दे पाएंगे वो मर जाएंगे। बैक्टीरिया का कोई इश्यू नहीं है। राइट। और जितने भी लोगों के घर में फैमिली मेंबर्स कोई भी सफ़र कर रहे हैं फंगल इन्फेक्शन से, क्या-क्या प्रिवेंशंस उन्हें अपनाना चाहिए? क्या-क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए एटलीस्ट? यस,
फर्स्ट ऑफ ऑल शेयरिंग ऑफ क्लोथ्स, वैसे भी हम एडवाइस नहीं करते हैं। आप जितना शेयर करोगे उतना एक बॉडी का बैक्टीरिया भी दूसरी बॉडी को ना सूट करे, ऐसा हो सकता है। तो फंगस तो हुँ, अगर एक जने को है तो आपको क्लोथिंग अवॉइड करना है। कपड़ों को हुँ, साथ में वॉश करना भी आप अवॉइड कर सको तो करो। जैसे हम लोगों हुँ, को कपड़े शेयर तो नहीं करते हैं, पर सुबह सबका कपड़े एक साथ में एक ही वॉशिंग मशीन में जाता है। राइट। दैट यू कैन हुँ, अवॉइड। उनके जिनको भी इंफेक्शन है उनके कपड़े आप अलग रख के उनको डेटॉल या कुछ भी एंटीसेप्टिक डाल के उसमें वॉश करिए तो बैक्टीरिया मर जाएंगे। एंड फिर उसको हुँ, ड्राई करके सुखा सकते हो। दिस इज वन थिंग। अवॉइड फोमाइट्स, जैसे कॉम हमने देखा है कि ऑलमोस्ट सभी घरों में ना एक जगह होती है जहाँ पे सब कॉम रखे हुए होते हैं, हुँ, कोई भी हुँ, उठा लेता हुँ, है। तो हुँ, अवॉइड शेयरिंग ऑफ कॉम्ब। वो भी डेंड्रफ या फंगस जो स्कैल्प पे ग्रो करी होती है उसको स्प्रेड करने का काम करता है। तो अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टैक्ट्स जितना हो पाए। तो जितना हमारे घर पे तो खैर जिसको भी होता है हमें पता ही होगा कि इसको है। बट यूजुअली दिस इज कॉमन इन पब्लिक एरियाज, तो वहां पे भी आप क्लोज कॉन्टैक्ट्स जितना अवॉइड कर पाए। मेंटेन लिटिल सेफ डिस्टेंस विल बी वेरी गुड फॉर प्रिवेंशन ऑफ सच इन्फेक्शियस प्रॉब्लम। राइट। एंड नाउ डॉक्टर विल क्विकली अटेंड द क्वेश्चंस जो हमारे व्यूअर्स की तरफ से आ रहे हैं। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं बट हम कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। सबसे पहला सवाल अनुज कुमार पूछते हैं, कैन पुअर हाइजीन लीड टू फंगल इन्फेक्शंस? Yes, it does. Poor hygiene means poor body hygiene, poor genital hygiene, poor scalp hygiene. जहाँ पे भी आपका hygiene break होगा, वहाँ पे fungus or any kind of microorganism will start growing. So yes, it is. And keeping your shampooing twice in a week, bathing ideally once, but अगर sweating ज़्यादा है या risk factor है तो twice. And genital hygiene, I would emphasize on not using any of the soaps and alkalines more than twice in a body. Rest all time you can use plain water. अगला सवाल डॉक्टर आ रहा है रिया साथी से जो पूछते ही है, व्हाट इज सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शंस? Yeah. It's the worst thing that one can ever have. Systemic fungal infection are usually tackled by physicians. So what happens, I will just introduce, अगर आपने पूछा है तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जब स्किन के डॉक्टर, फंगल इन्फेक्शंस आर टू टाइप, वन इज सुपरफिशियल माइकोसिस एंड देन देर इज सिस्टमिक इन्फेक्शन। तो सुपरफिशियल माइकोसिस मतलब स्किन के अपरमोस्ट लेयर के ऊपर फंगस लग जाती है, जो हमने देखी है रोटी ब्रेड पे या सीलन के ऊपर लग जाती है। अब उसके पूरे साइन सिम्टम्स वगैरह अलग है ना। सिस्टेमिक माइकोसिस मतलब होता है कि आपके ब्लड के अंदर या आपके बॉडी के ऑर्गन्स के ऊपर फंगस लग रही है। दैट मीन्स यू आर एट हाई रिस्क, आपका इम्यूनिटी बहुत लो है। दिस कैन बी इन एड्स पेशेंट, ऑल द पेशेंट विथ कीमोथेरेपी, जिनका दवाइयाँ चल रही है, इतनी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ चल रही है, इम्यूनिटी लो करने की दवाइयाँ चल रही है, इम्यूनोसप्रेसेंट्स बोलते हैं। अगर किसी पेशेंट को वो चल रहा है तो उनकी बॉडी की जो रक्षा करने की क्षमता है वो कम हो जाती है, और इसकी वजह से कोई भी फंगस बॉडी के अंदर ग्रो करता है, बी इट योर लंग्स, योर बॉडी, योर एनी ऑफ योर ऑर्गन्स। तो दैट इज कॉल्ड सिस्टेमिक माइकोसिस और सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन, एंड दैट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय एनी ऑफ द फिजिशियंस। एंड अगर वो हो रहा है तो यू शुड बी वेरी मच अवेयर अबाउट इट। राइट। अगला सवाल डॉक्टर आ रहा है अभी कुमार से जो पूछते हैं, कैन आई गेट अ फंगल इन्फेक्शन फ्रॉम स्विमिंग पूल्स? Dicey question. Yes and no both. वन, स्विमिंग पूल के अंदर एज अ पब्लिक अवेयरनेस वो लोग क्लोरीन यूज करते हैं और उससे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। तो यूजुअली स्विमिंग पूल से नहीं होता है वो। बट ये सब अब वो भी ऐसा ही एक पब्लिक एरिया है जहाँ पे बहुत सारे लोग बाथरूम्स यूज कर रहे हैं, वहाँ की एरिया यूज कर रहे हैं। मे बी यू आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, जब आप स्विमिंग कर रहे हो आप कम से कम कपड़े पहन के जा रहे हो, तो यू आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ अदर पीपल एज वेल। सो दैट कैन बी अ हुँ, सोर्स। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप स्विमिंग पूल यूज करने के बाद अपना हाइजीन ठीक से नहीं रख रहे हो, आप गीले कपड़े पहन के एक दो घंटे, मतलब आप यहाँ से अगर घर का डिस्टेंस आपका आधा एक घंटे का है और आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं घर जाके चेंज कर लूंगा, तो दैट your lack of care may lead to fungal infection. Swimming pool per se, I have seen them using really good quality of chlorine and other whatever antiseptics they are using, but they do take good charge for their work. राइट। अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर कम्स फ्रॉम चौहान कियारा। वो पूछती हैं, हाउ डज़ एंटी फंगल मेडिकेशन वर्क?
Antifungal medications usually work on three different areas. जैसे हम एकदम लेमन लैंग्वेज में आपको समझाने की ट्राई करेंगे कि फंगस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका एक सेल बॉडी होता है, उसके सेल के अंदर एक सेंटर होता है विच इज माइटोकॉन्ड्रिया, और उसके अंदर अदर ऑर्गेनेल्स होता है। तो अगर आपको किसी भी दुश्मन को मारना है तो उसके पास कितने हथियार है वो सबको आप टारगेट करो और सबको खराब कर दो, तो आपका दुश्मन mm, मर जाएगा। वैसे ही mm, फंगस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो भी एक जीवंत बॉडी है। तो उसकी बॉडी सेकंड, जहां पे उसका एनर्जी प्रोडक्शन सोर्स है, उसका माइटोकॉन्ड्रिया है, आप उसको मार डालो। देन थर्ड, आप उसका बॉडी का सिस्टम खराब कर दो, उसका जो न्यूक्लियस है जहां से वो हर एक क्या बोलते हैं कि सिग्नल्स भेजते हैं, आप उसको डैमेज करो। तो अगेन इसमें मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है कि मेनी ऑफ द अदर डॉक्टर्स या फिर जो पुराने डॉक्टर्स हैं, जब उनके टाइम पे एक ही दवाई अवेलेबल थी तो वो वही यूज कर रहे हैं। बट नाउ डेज वी हैव थ्री डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो तीन अलग अलग प्लेस पे असर करते हैं मारने के लिए। तो एक है वो वॉल पे काम कर रहा है, एक माइटोकॉन्ड्रिया पे काम। right. So we are almost towards the end of today's session, and lastly, we are facing a technical glitch again. So we are trying to get her connected. If not possible, हमने आज बहुत कुछ जाना है इस सेशन से. We got to learn a lot. बहुत सारी important basic बातें जो हम मिस कर देते हैं आज हमने सब जाना. I hope you all have enjoyed today's session. बहुत ही बेहतरीन सेशन था, but we are still trying to get the doctor connected so that we can hear the last words from her for today. So, everyone, I hope you all had a wonderful learning time, and it was a great, great discussion with Dr. today.